السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے ابھی کل کی نیوز ہے کہ 100+ شہادتیں دیکھی ہم نے پادشاہان میں، اور یہ ہر مہینے، مطلب یہ ایک دفعہ کا سلسلہ نہیں، یہ ہر مہینے ایسی خبریں آتی ہیں کہ 100+ جو ہے، اور اتنی اتنی تعداد میں جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا؟ یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ کیا سلسلہ ہے؟ نہ وہاں غذا پہنچ پاتی ہے، جس طرح سے مطلب غازہ میں ہو رہا ہو اسی طرح سے یہ ایک منی اس کو کہہ لیں آپ۔ تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ پارا چنار جو ہے وہ اپر کرم کہہ لیں اس کو، سچویٹڈ ہے خیبر پختونخوا کا ایک ویری پروناؤنس سٹی، جو انگریزوں اور ایون مغلیہ دور میں سائٹ آف انٹرٹینمنٹ تھی، اور ایک ایسا پاتوے تھا جو کنیکٹ کرتا تھا انڈو پاک کو افغانستان اینڈ آل، اور آج بھی وہ پاتوے اپنی جگہ کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے۔ مغل جو رولرز گزرے ہیں انہوں نے اس جگہ کو باقاعدہ اپنی ریزیڈنس جو بنائی ہوئی تھی سمر میں، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو سمر میں بھی جو ہے ایک اچھا خاصا کول ٹیمپریچر دیتا ہے، تو یہ ایک سائٹ تھی جو من پسند تھی ان لوگوں کی، معدنیات کے حوالے سے، سائٹ سینگ کے حوالے سے، اور دوسرے منرلز کے حوالے سے۔ یہ سائٹ اور ایون اسٹریٹجیکلی ملٹری زونز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ڈومینین سمجھا جاتا تھا اور جاتا ہے ابھی بھی، کیونکہ اس کی جو پیرامیٹرز ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ یہ ڈپ کرتا ہے انفیکٹ افغانستان کے اندر باقاعدہ، اور وہ کنیکٹنگ پلیس ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ایک ایسی پلیس ہے جو ڈپ بھی کرتی ہے اور ڈائریکٹ کھلتی ہے افغانستان کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ جو منرل سٹونز اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں سوپ سٹون، ڈیم سٹون، راک سالٹ، ماربل اینڈ کول، یہ یہاں کی جو ہے انڈسٹریل ایسی چیزیں ہیں جو یہاں بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں باقاعدہ کانوں کی صورت۔ اچھا، اب پاکستان سے اگر اس کی مین پشاور سے اس کا ڈسٹنس اگر ہم لیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 248 کلومیٹر، اور یہ پشاور سے بنتا ہے پارا چنار تک، اور اس کے درمیان میں ملٹیپل ایسے اسمال اینڈ لارج ٹاؤنز آتے ہیں جو یا ولیج آپ یا شہر کہہ لیں، اس میں شہر بھی جس میں جیسے در آدم خیل وغیرہ وہ آتے ہیں، اور یہ جو ٹوٹل ڈسٹنس اس کا ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے کے اندر طے ہوتا ہے پشاور سے پارا چنار تک۔ اچھا، اگر پشاور سے ہم سفر شروع کرتے ہیں پارا چنار کا، تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہمارا پشاور ہے تو پہلا جو اسمال ٹاؤن کہہ لیں یا اس سے ایفیلیٹڈ، پشاور سے ایفیلیٹڈ ایریا کہہ لیں، وہ پبی آتا ہے جو 20 کلومیٹر کے اوپر واقع ہے۔ اس کے بعد نوشیرہ آتا ہے جو 35 کلومیٹر ہے، پھر اکوڑا خٹک آتا ہے جو 40 کلومیٹر ہے، کوہاٹ آتا ہے جو 60 کلومیٹر ہے، کوہاٹ ٹنل 70 کلومیٹر کے تقریباً وہ ہے، در آدم خیل 90 کلومیٹر کے اوپر ہے پشاور سے، اور اس کے بعد دابا آتا ہے جو 110 کلومیٹر پہ ہے، اور پھر ہنگو، تال، تھال، سدا، بگن، چمکنی، علیزئی، اور پھر پارا چنار جو کہ تقریباً 275 کلومیٹر بن جاتے ہیں، 245 to 275 کلومیٹر، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے ڈسٹنسز کو جو ہے ٹائم زون کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، ڈسٹنس کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے درمیان میں کار کے سفر ہے جو مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا مین برانچ لیتا ہے پشاور کوہاٹ روڈ جو بنی ہوئی ہے، اس سے برانچ لیتا ہے تھل روڈ، پارا چنار روڈ کو، جہاں سے پھر یہ ٹرن لیتا ہے اور وہ سیدھی روڈ جاتی ہے پارا چنار کو۔ روڈ اگر آپ بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو یہ روڈ فیئرلی گڈ کنڈیشن میں ہوتی ہے، بس جو اس کے چند ایک ایشوز ہیں اس میں سے
एक वेदर इटसेल्फ जो होता है, अगर सर्दी का ज़माना है तो फिर उसमें बर्फबारी और ये कंसर्न होते हैं। और दूसरा कंसर्न जो मेजर है वो उसका सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये एरिया जो है वो बिल्कुल हैजर्ड्स के साथ है, चाहे वो ह्यूमन हैजर्ड्स के तौर पे डेक्वाइटी, एब्डक्शंस या और टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि जब से तालिबानाइजेशन हुई हैं उसके बाद से ये एरिया जो है ज़रा सा वुल्नरेबल है उन लोगों के लिए जो उससे फेमिलियर नहीं है। अच्छा, ये पिशावर कोहाट रोड जो है वो थल पाराचनार रोड को ब्रांच ऑफ करती है, और वहाँ से फिर ये जो है पाराचनार की तरफ रूट जाता है इसका। और ये रूट फिर तकरीबन आप इसको कह लें कि 130 किलोमीटर्स जो का रूट है, जो फर्दर इसको आगे लेकर जाता है 245 माइनस 130 किलोमीटर। प्रेजेंटली जो कॉन्फ्लिक्टिंग इस वक्त इशू चल रहा है वो मल्टी डायमेंशनल कह लें उसको, जिसमें सेक्टेरियन से लेके तो टेररिज्म एज वेल एज जो जिस तरह जमीन के इश्यूज क्रिएट होते हैं वो यहाँ भी अपनी जगह पे क्रिएट है, क्योंकि यहाँ बेसिकली जो ट्राइबल बेल्ट थी और शुरू से, और कहते ये हैं कि यहाँ दो मेजर कबाइल जो तूरी और बंगश हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। तूरी बेसिकली शिया ट्राइब है और बंगश जो है वो बेसिकली सुन्नी ट्राइब है, लेकिन पार्शली उसमें 10 to 15% जो पॉपुलेशन है वो शिया ट्राइब्समैन के ऊपर मुश्तमिल है। तूरी अफगानिस्तान के शहर तूर से माइग्रेट करके 1600 के अंदर यहाँ पहुंचे थे। ये बेसिकली वॉरियर्स हैं, और ये ब्रिटिशर्स से भी और उसके बाद भी दूसरे दौरों में ये रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पे हमेशा रहे अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स एंड अगेंस्ट दी जो फोर्सेस वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना चाहती थी, तो हमेशा से इन्होंने रेजिस्टेंस दी। जबकि बंगश जो थे हमेशा से उन्होंने हुकूमतों को फेवर किया, और इवन इंग्लिश दौर के अंदर भी बंगश ने जो है वो जब कॉलोनियल सिस्टम था तो उनको सपोर्ट किया, और वो बेसिकली सेटल हुए लोअर कुरम के अंदर, और वो लोग जो सेटल थे जो शिया ट्राइब तूर था वो सेटल हुआ अपर कुरम के अंदर। अच्छा, अब जो इसको ज़ाहिरन इसकी असेसमेंट करें तो इनकी जो मेन कॉज कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू ट्राइब्स एंड द अदर ट्राइब्स जो कि इनके साथ माइनर ट्राइब्स शामिल हो जाते हैं, वो बेसिकली सेक्टेरियन टेंशन है जो 1980-1990 के बाद से डेवलप हुई ज़्यादा। उसके अंदर प्रॉक्सी वॉर्स भी आप कह सकते हैं उसके अंदर, और फिर जो नेशनल इश्यूज होते हैं लैंड लॉर्ड्स के और वॉर लॉर्ड्स के, वो इश्यूज अपनी जगह के ऊपर थे। और उसके अलावा जैसे ट्राइबल राइवलरीज होती हैं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे मैंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर्स, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह को मुतासर करते हैं किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि आज हाँ आप डेवलप सिचुएशन देख रहे हैं कि वहाँ सेक्टेरियन लेवल के ऊपर इश्यूज जो है क्रिएट हो चुके हैं। सेक्टेरियन सबसे माइनर लेवल होता है जब आदमी जाके सेटल करता है उसको, इसलिए कि उससे पहले बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए होते हैं। उसमें टेररिज्म भी होती है अपनी जगह के ऊपर, उसके अंदर इंसर्जेंसी भी होती है, उसके अंदर जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, उसके अंदर दूसरी फोर्सेस जो होती हैं जो मुल्क को सैबोटाज करना चाह रही होती हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बाद फिर अल्टीमेटली सेक्टेरियन लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर आकर जो है झगड़ा खड़ा होता है। अच्छा, अगर हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लेते हैं 1980 से, तो सेक्टेरियन टेंशन जो है 1980s में शिया सुन्नी ट्राइब्स के दरमियान में क्लैश की सूरत क्रिएट हुई। 1990s में एस्केलेट हुई यही मिलिटेंट ग्रुप सिपाही साहबा की बनने से और लश्कर जंगवी के बनने से। तो ये जो क्लैश था ये मजीद और आगे इसने वो लिया। उसके बाद तकरीबन 2000 के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हुआ कि ये बाकायदा ट्राइब्स के अंदर एक दूसरे के सामने राइवलरी की सूरत ले गया, और वो फिर एक सेक्टेरियन लेवल जो था ट्रिबल
ट्राइबल लेवल के ऊपर चला गया। 2010 में ये क्लैशेस चलते रहे और उसके बाद जो है आप यूं कह लीजिए कि इस दौरान में जो प्रॉक्सीज थी उन दोनों तंजीमों की वो भी उसके अंदर शामिल हो गई और उन प्रॉक्सीज के अलावा जो इंटरनेशनल लोग जो इसको इंटरनेशनली जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसको सेबोटाज करना चाहती थी उन्होंने भी अपने इन्फ्लुएंस डाल के इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको सपोर्टिव एलिमेंट देने के बाद वो एक ख़ास लोगों को टारगेटेड ऑपरेशंस की तरफ डाल दिया गया और वो मुसलसल टारगेट की रिटेलिएशन में अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। जो इस कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट में जो पिछले कई सालों से आप डिकेड्स कह लें उनसे चल रहा है, उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं उस एरिया के अंदर, इसलिए कि उसमें इस वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़े हैं। इनफैक्ट सोशल फैब्रिक्स के ऊपर भी बहुत वो हुआ है, जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम हुई है, लोग जंगी हालात के अंदर रहने के आदी हो गए हैं, मेडिकल फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती, एरिया कॉर्डन एक रोड के थ्रू वहाँ की अप्रोच है, तो जब अगर वो रोड ब्लॉक कर दी जाती है तो उसके बाद ना कोई तरीक़ेकार नहीं है जिससे कम्युनिकेशन को क्रिएट किया जा सके, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोविज़न की जा सके या और कोई ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम किया जा सके। तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट हो गई और इस वजह से अब वहाँ पे बहुत सारी फॉरेन एनजीओज भी जो है इस सिलसिले को वहाँ पे कम करने के लिए ताकि लोगों को उनको फैसिलिटेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हमेशा कोशिश की कि इसको संभालने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये चीज़ें जब मुल्क के विद इन दी मुल्क अगर आपस में ही सेक्टेरियन या एथनिक वायलेंस की सूरत ले ली जाती है तो वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर होती है उसको ज़रा मुतवाज़न तरीके से वो करना पड़ता है, जिसके अंदर ब्लेम्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जहाँ क्योंकि दस्तूर वहाँ का जो पॉलिटिकल दस्तूर वहाँ का था वो था ही ये कि जिरगा बैठेगा और जिरगा बैठ के, क्योंकि उनकी एक यूं कह लीजिए कि उनके एक रस्म है, उनके रिचुअल्स हैं उनके ये, तो गवर्नमेंट फिर उसी अंदाज में उन पैटर्न्स को डील करती है और जिरगे बिठाती है और लोकली जो है वो जो बड़े लोग होते हैं उन दोनों का कभी कबाइल के उन लोगों को सामने उलमा को सामने करते हैं और उनके साथ फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि उसके ऊपर वो पार इस्तेमाल करे और उसको अपनी रेट को मेंटेन करे। तो ये पॉसिबल नहीं होता, और खासकर उस वक्त जबकि आपके अपने लोग जो हैं पीजेंट जो हैं इन्वॉल्व हों उस राइवलरी के अंदर या एक दूसरे की जमीन की बुनियाद के ऊपर लड़ रहे हों, तो वो उसको कंसोलिंग एलिमेंट में करने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, जो कि वो किसी हद तक कर रही है। लेकिन आफ्टर ऑल जो फुलक्रम होना चाहिए था जिस इमेज का जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिक्स होती हैं वो बिल्कुल डेफिशिएंटली दिख रहा है। अब उसकी क्या वजह है वो हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, अब ये तमाम अवामिल जो इन कबाइली झगड़ों में जिन्होंने अपनी एक शक्ल ले ली और अल्टीमेटली वो एक रिलीजियस ग्राउंड सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर पहुंच गए, उसकी मेन वजह ये है कि वो कुछ बैन ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंसर्जेंसीज और या वो तालिबानाइजेशंस जिन्होंने इसको कॉर्डन एंड कंट्रोल किया इन एरियाज को, क्योंकि खुला हुआ एरिया है तो, और यहाँ से रीडली अप्रोचेस एक्सटर्नल इंटरनल पहाड़ों के जरिए बहुत इजीली अप्रोचेस हैं या छुपने की जगह ज्यादा हैं, तो उसने इन्फ्लुएंस सेक्टेरियन लिया और उस सेक्टेरियन के अंदर टेररिज्म आ गया। वो इस तरह आ गया कि अगर आप और यानी दो कौमों के दरमियान दो फिरकों के दरमियान अगर थोड़ी सी किसी बात पे क्लैश भी है तो उसमें इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना किरदार अदा करके दोनों की रिफ्ट को और मजीद बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ जो ब्रूटैलिटी किलिंग के अंदर दिखती है वो ब्रूटैलिटी दो लड़ने वाले कबीलों के दरमियान नहीं होती। ये ब्रूटैलिटी बिल्कुल ऐसी दिखती है जो यजीदियत की बुनियाद के ऊपर हो, जिसमें नाम किसी औरत की
तकद्दुस को देखा जाता है, ना किसी बच्चे के तकद्दुस का, ना किसी बूढ़े के। दुनिया भर में जंगो जदल जो भी होती है, इन चीज़ों को सामने रखा जाता है। लेकिन ये चीज़ें बता रही हैं कि ये बिल्कुल यजीदी किरदार के ऊपर खून रेजी है, जिसमें ना 6 महीने का बच्चा हो या कोई और कोई औरत हो या कोई बुजुर्ग हो, वो किसी को, हर एक को आप टारगेट करके या फिर आप जो है उनको स्नाइपर्स के तौर पे, या फिर आप उसको एम्बुश करके जो है टारगेट कर दें। इस पूरे वाकये के अंदर एरिया की सिक्योरिटी इस अंदाज में की जाती है, जो गवर्नमेंट देती है, वो हंगू से आपके साथ पायलट्स चलते हैं जो कि आगे और पीछे कॉन्वॉय की सूरत लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि एरिया कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर के ऊपर है, और वहां पे पिकेट्स की फॉर्मेशन और दूसरी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन जो है वो एक डिफिकल्ट टास्किंग है। नतीजा ये है कि उसके दरमियान में ये एम्बुशेस होते हैं और वो फिर अल्टीमेटली जो है एक मासिव मैसेकर की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से बिल्कुल ये प्ली है, इस चीज को रोका जाए, नहीं तो ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जो है मजीद सेक्टेरियन वायलेंस को जो है वो बढ़ाएगी। अच्छा, फिलवक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें 103 शहादतें जो हैं इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं, कि 103 के करीब शहादतें हुई हैं, जिसमें 17 बच्चे और 20 औरतें हैं। और अगर इस पूरे साल मुख्तलिफ वाक़यात का हम तनाजुर में इसको देखें तो तकरीबन जो अब तक हम तक जो रिपोर्ट मिली है वो तकरीबन 400 अफराद जो हैं इस साल लुक़्मा अजल बने, शहादत के मर्तबे फ़ाइज़ हुए, फ़कत इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के वजह से। थैंक यू वेरी मच।